ہم نے لاش اٹھایا, کوئی لیڈیز نہیں تھا, کوئی ایمبولینس نہیں تھا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم پیچھے سے کھڑے ہوتے, دھماک ہو گیا. میں نے سوچا کوئی شاید کوئی ٹرانسفر بسٹ ہو گیا, پھر دیکھا سارا علاقہ خون ہی خون تھا. پورے 2 گھنٹے لگے, ہم خود لاش اٹھایا. بہت سے لوگ جو ایکسپائر ہو گئے اسی ٹائم. تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آیا, کچھ کو ہسپتال لے گئے اور کچھ ہسپتال میں وفات پا گئے. بلوچستان کے شہر مسونگ میں عید میلاد النبی کے جلوس پر خودکش حملہ, 52 افراد جاں بحق, 60 سے زیادہ زخمی. جاں بحق افراد میں ڈی ایس پی نواز کشکوری بھی شامل. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق خودکش دھماکہ مسونگ کے مدینہ مسجد کے باہر جلوس کے لیے جمع افراد کے درمیان کیا گیا. دھماکے کی شدت کی وجہ سے ان کے کان بند ہو گئے تھے. کچھ لوگ لاشوں اور زخمیوں کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. لہنی شاہدین نے بتایا کہ ایمبولینس کم تھی, زخمی اور جاں بحق افراد کو رکشوں, ڈاٹسن اور دوسری گاڑیوں میں اسپتال منتقل کرنا پڑا. دہشت گردی کے واقعے پر نگران صوبائی حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان. یہ ابھی جلوس کا شروع تھا جہاں سے سوسائڈ بومبر نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. وہاں پہ موجود ڈی ایس پی ایک سینئر افسر تھا, وہ جس نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کی اور اس پہ سوسائڈ بومبر نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا, جس سے ہمارے ڈی ایس پی موقع پہ شہید ہو گئے. آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ نے کہا ہے کہ خودکش حملہ آور نے 12 ربیع الاول کے جلوس کے آغاز میں ہی اس میں داخل ہونے کی کوشش کی. شہید ڈی ایس پی نواز کشکوری نے حملہ آور کو روکا تو اس نے خود کو اڑا لیا. جلوس میں شہریوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے جانی نقصان زیادہ ہوا. آئی جی نے بتایا کہ مسونگ میں پہلے کچھ گروپ ایکٹیو تھے جن کے خلاف آپریشن جاری ہیں. دھماکے میں شہید ہونے والے ڈی ایس پی نواز کشکوری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ کے بعد میت آبائی علاقے روانہ کر دی گئی. چالو تھا اس ٹائم میں جو گیٹ پہ این ڈی پی پولیس تھا اس نے فائرنگ کھول دی اور اس پولیس والے نے 60-70 سے زیادہ نمازی تھی, اس پولیس والے نے بچائی تھی. پہلا جو بلاسٹ ہوا تھا وہ مین گیٹ پہ ہوا, اس کے بعد تقریباً 2-3 گرنیڈ کی بلاسٹ ہوئی, پھر چوتھا جو تھا وہ مسجد کے اندر بلاسٹ ہوا. ہنگو کی تحصیل دوحابہ میں تھانے کی مسجد میں خودکش حملہ, 5 افراد جاں بحق, 12 زخمی. دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی, کئی افراد ملبے تلے دب گئے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بروقت کارروائی کر کے خودکش حملہ آور کو مسجد کے باہر ہلاک کر دیا. پولیس اور حملہ آوروں میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران نمازی مسجد سے باہر نکلے. اس دوران دوسرے خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخل ہو کر خود کو اڑا لیا. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دہشت گرد کو گیٹ پر روکنے والے اہلکار نے بڑے نقصان سے بچا لیا. فائرنگ کی آواز سن کر نمازی چوکنے ہوئے اور خود کو محفوظ کر لیا. سیکیورٹی فورسز نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی. پاک افغان سرحد کے قریب جوب میں کارروائی, 3 دہشت گرد ہلاک, کئی زخمی. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. حوالدار ستار, لانس نائک شیر اعظم, لانس نائک عدنان اور سپاہی ندیم دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. رحمۃ اللہ للعالمین سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت پر ملک بھر میں جشن, فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں, سب جھنڈوں کی بہار. اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ میں عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس اور ریلیز. شمع رسالت کے پروانے بڑی تعداد میں شریک, لنگر کا بھی اہتمام. آقائے دو جہاں سے محبت و عقیدت کا اظہار. گھر, گلیاں, محلے, مساجد, چوراہے اور عمارتیں رنگ و نور سے جگمگا اٹھی.
امت خضرا اور خانہ کعبہ کی خوبصورت ماڈل نبی و آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل کا بھی انعقاد. عید میلاد النبی پر دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے. درود و سلام سے معطر، بچے بوڑھے جوان سبھی عشق نبی سے سرشار. حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودھا، نوشہرہ، عبد آباد، مانسہرہ، نصیر آباد، جعفر آباد، حب، خزدار، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت کئی چھوٹے بڑے شہروں میں ربیع الاول کے جلوس، درود و سلام کی صدائیں، میلاد کی محافل، گلہائے عقیدت نچھاور کیے گئے، بچے بھی پیش رہے. حیدرآباد سے خیبر اور گلگت سے گوادر تک تمام دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کیا جاتا رہا. ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محافل کا انعقاد کیا گیا. سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. بارہ ربیع الاول پر مختلف شہروں میں نیاز اور لنگر کا بھرپور اہتمام. لاہور کے باغبان پورہ بازار میں لنگر تقسیم کیا گیا. بھاو نگر میں لنگر کے لیے 150 من حلیم تیار کی گئی. گجرانوالہ میں حلوہ پوری نان حلیم سے شہریوں کی توازن. پشاور اور راولپنڈی میں بھی لنگر کے لیے دیگیں تیار کی گئی. رحیم یار خان میں بیکری والے نے 2000 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کیا. معروف بینڈ نے دھنیں بکھیری. گھوڑ ڈانس کا بھی اہتمام کیا گیا. قومیں ہمیشہ اتحاد و اتفاق سے بنتی ہیں. افو درگزر سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کا خطاب. کہا پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. نبی کریم کی سیرت پر خطاب میں کہا کہ نبی کریم نے انصاف کا نظام قائم کیا، غریبوں کا خیال رکھا. ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. تحریک انصاف کے چیئرمین کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت سے ریلیف نہ ملا تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. تحریک انصاف کے ساتھ کوئی سختی نہیں ہوگی لیکن منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق رویہ اختیار کیا جائے گا. ایک سوال کے جواب میں انوار کاکڑ نے کہا کہ وطن واپسی پر نواز شریف سے کیا سلوک ہو، یہ سوال عدلیہ کے پاس ہے کیونکہ سزا یافتہ نواز شریف عدلیہ کی اجازت سے بین الملک گئے تھے. نواز شریف کو غلط یا درست کوئی سزا اگر سنا دی گئی ہے تو ان کے کہنے سے نہ سزا کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. نیب لاز جب کھل گئے ہیں تو ہم بھی بیچ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب تو سارے ہی سابق وزیر اعظم، پریزیڈنٹ وزیر اعظم اور یہاں سے چھوڑ کے جانے والے وزیر اعظم، جیل والے وزیر اعظم اور صدر بھی سب ایک ہی صف میں ہیں. تو اس لیے لیول پلینگ فیلڈ تو ہو گیا. پیپلز پارٹی کے رہنما
रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने नैब कानून की बहाली को इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड करार दे दिया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि नैब कानून की बहाली के बाद साबिक सदर तमाम साबिक वज़ीर आजम चाहे वो जेल में हैं या मुल्क से बाहर एक सफ में खड़े हैं। नवाज शरीफ आए खैर मकदम करते हैं, ज्यादा लीडर्स की शमूलियत से इलेक्शन की साख बढ़ेगी। ऐसा कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान भी कर दे तो लोगों में इस्तराब खत्म हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि बड़ों ने भी शायद फैसला कर लिया हुआ है कि बेहतर है आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कि जिस हद तक हालात पहुँच गए हैं तो बेहतर ये है कि दोनों ख़ानदान जो हैं वो अपनी अपनी अलग-अलग सियासत करें और बेहतर यही है कि अगर एक ही टेबल पर बैठना है वो तो वेलकम है, मगर जहाँ बात है सियासत की तो बेहतर है कि अपनी पार्टी उनकी अलग हो और हमारी पार्टी अलग हो। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही का काफ लीग में वापसी का कोई चांस नहीं। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफी हुसैन ने वाज़ेह कर दिया, कहा जिस हद तक हालात पहुंच गए हैं बेहतर है दोनों खानदान अपनी अलग-अलग सियासत करें। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद साबिक वफाकी वजीर एजाज उल हक का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ का इस्तकबाल हथकड़ियों से होगा या फूलों की पत्तियों से, कुछ नहीं कह सकते। शहबाज शरीफ जो पैगाम लंदन लेकर गए थे, देखना होगा उसका क्या रद्द अमल आता है। Across the line, across the spin. Inside our driver, mid-off, that should fetch him a 4. Big shot. Edge, no fielder out there. That's going to run away for 4. Babar Azam, he picks up a 50. That's into the gap and we'll give him 100. Rizwan has played a lovely hand here. पाकिस्तान के मिशन वर्ल्ड कप का आगाज वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 345 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 94 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हुए, बगैर बाहर चले गए। कप्तान बाबर 80 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने सिर्फ 53 गेंदों पर 75 रन बनाए। आगा सलमान की 23 गेंदों पर 33 रन। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड का जारिहाना खेल, 4 विकेट के नुकसान पर 274 रन बना लिए। बहुत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। भारत को दुश्मन मुल्क कहने पर शदीद तनकीद की जद में आए पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का यू टर्न। कहा भारत में जबरदस्त इकबाल, दोनों मुल्कों के आवाम की खिलाड़ियों से मोहब्बत का इजहार है। पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में दुश्मन नहीं, रिवायती हरीफ है। उम्मीद है पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को इसी तरह पजीराई मिलेगी। इससे पहले ज़का अशरफ ने गुज़श्ता रोज कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के मुआवजे इसलिए बढ़ाए कि जब दुश्मन मुल्क में खेल रहे हों तो उनका मोरल डाउन न हो। तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 माह की डेडलाइन दी जाएगी। डेडलाइन खत्म होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे डॉलर की गैर कानूनी तिजारत से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाने में मुलविस हैं। बेशतर गैर कानूनी तारिकीन वतन मुजरिमाना सरगर्मियों और स्मगलिंग में भी मुलविस हैं। इससे कबल वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा था कि अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पाकिस्तान से वापस उनके मुल्कों को भेजा जाएगा।
वफाकी हुकूमत का अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइल्स समेत कई अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की जाएगी। वजारत तिजारत की अशिया की 100% मालियत पर रिवॉल्विंग इंश्योरेंस और बैंक गारंटी लेने और FPR को 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की सिफारिश। फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से कौमी खजाने को सालाना 185 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। जराये का कहना है कि सिर्फ एक साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजम $2.5 अरब इजाफे से $6.71 अरब हो गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने दरामद पर पाबंदी के असरात को ज़ायल कर दिया। जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी या ड्यूटी बढ़ाई वही अशिया ट्रांजिट ट्रेड में मंगवाई जा रही हैं। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बाद बेशतर अशिया स्मगल करके पाकिस्तान में बेच दी जाती हैं। के इलाके सकरन में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का कल से जारी धरना खत्म। वज़ीर आला की बनाई गई 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 4 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। SSP हैदर रजा का कहना है कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सकरन में कलदम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के रुकन अल्लाहदाद जलबानी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई थी। गाँव वालों ने तसादुम के दौरान रेंजर्स की तहवील में मौजूद लियाकत जलबानी को भी छुड़ा लिया था। पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुश्तिल अफराद की तशद्दुद से 5 रेंजर्स एहलकार जख्मी भी हुए। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स और पुलिस ने शरपसंद जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सकरन वाक़े पर निगरान हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वाक़े में हलाकतों पर तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा कि सकरन वाक़े आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात की जाएंगी। बलूचिस्तान से अगवा किए गए 6 फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया। घरों तक पहुंचा दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमत मजीद 2 फुटबॉलर्स को बाजियाब करवाने के लिए कोशा हैं। इन फुटबॉलर्स को 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए डेरा बुक्टी से अगवा किया गया था। मुल्तान एयरपोर्ट पर भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाला खानदान ऑफलोड कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक तफ्तीश के दौरान 16 अफराद पर मुश्तमिल भिखारी खानदान का इंकशाफ हुआ। 3 एजेंट्स ने सऊदी अरब में इस खानदान के रहने और खाने का बंदोबस्त कर रखा था। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंट्स को देनी थी। 2 रोज पहले सेनेट कमेटी को बताया गया था कि बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं इनमें भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। IMF का पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में मजीद इस्लाहात और कारकर्दगी में बेहतरी लाने पर जोर। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने कहा कि इन इक़दामात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। कहा पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासब इंतहाई कम है। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। मुल्तान रीजन में बिजली चोरी की रिकवरी और मीटर रीडिंग करने वालों पर हमलों में इजाफा। मुख्तलिफ वाक़यात में SDO समेत MEPCO के कई वर्कर जख्मी। बिल के केस करवाने के लिए आए शख्स ने SDO पर पिस्तौल तान ली। साथियों के हमरा तशद्दुद किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास में हेस्को टीम पर मुश्तल अफराद का हमला। 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैटेलाइट टाउन में पेश आए तशद्दुद के वाक़े में अफसरान और एहलकारों ने एक घर में छुप कर जान बचाई। फेस्को रीजन के 8 अजला में 73 बिजली चोर पकड़े गए। 73 लाख रुपए के जुर्माने आए। पंजाब काबीना ने लाहौर में मजीद 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में अब मजमूई तौर पर 9 तहसीलें होंगी। नए असलाह के कयाम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक काबीना को सानह जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके बाद JIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया।
तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात पर मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक 9 मई के वाक़यात का तहरीक इंसाफ खुसूसन चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं। मन घड़त रिपोर्ट 9 मई के वाक़यात के हकीकी जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। आज़ादाना तहकीकात तक जाली JITs की रिपोर्ट्स की कोई हैसियत नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बासिर ने महकमे खुराक का ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया। इजलास के दौरान सूबे के गोदामों में मौजूद गंदम के ज़खायर का जायजा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाक से 5 लाख टन इम्पोर्टेड गंदम लेने के लिए लिखा है, जो मिलना शुरू हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मस्तोंग और हंगों में धमाकों की मजम्मत। जो वाक़े में भी शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। निगरान वज़ीर आज़म की धमाकों के ज़ख्मियों को तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और हाफिज अब्दुल्ला का भी वाक़यात पर इज़हार अफसोस। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज, रेंजर्स और पुलिस की काविशों को सलाम पेश करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों का मकसद मुसलमानों में तफरीक पैदा करना है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए पाकिस्तान से ताउन को तैयार है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रोम ने एक बयान में कहा कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हुई नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर तिजारत का कहना है कि खलीजी ममालिक ने 2009 के बाद किसी भी मुल्क के साथ पहला आज़ाद तिजारती मुआहदा किया है, जिससे $70 अरब की सरमाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई। मुआहदे से खलीजी ममालिक के साथ तिजारत का हजम कई गुना बढ़ेगा। लाखों पाकिस्तानियों को गल्फ ममालिक में रोजगार मिलेगा। एजाज गौहर की सऊदी अरब में पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फहद अल-बास से मुलाकात। 2 तरफा तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि सऊदी सरमाकार पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और IT समेत कई शोबों में सरमाकारी कर सकते हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम नाकाम। रियासत टेनेसी के रिपब्लिकन रुकन एंडी ऑगल्स ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के 298 अरकान ने इकदाम के खिलाफ, जबकि 132 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। कांग्रेस मेंबरान शीला जैक्सन और बारबरा ली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए। बारबरा ली ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी से निमटने और अमन सलामती को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की इमदाद जरूरी है। शीला जैक्सन ने कहा कि पाक अमरीका ताउन हमारी मुश्तरका जमहूरी अक़दार में जुड़ा है। 2 तरफा ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका का भारत पर कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। वाशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन की अपने भारतीय मनसब से मुलाकात। हरदीप सिंह नेजर कत्ल केस का मामला उठाया है। कनाडा में अमरीकी सफीर का कहना है कि सिख रहनुमा कत्ल केस से मुताल्लिक कुछ मालूमात 5 मुल्क की इंटेलिजेंस अलायंस ने इकट्ठी की हैं। कनाडा में सिख अलहद की पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नेजर को जून में कत्ल कर दिया गया था। जिंदगी से है प्यार तो रखें दिल का ख्याल। दुनिया भर में आज दिल की बीमारियों से आगाही का दिन। इस साल का उन्वान है दिल का इस्तेमाल करें और दिल को जानें। माहिरीन का कहना है कि नौजवानों में दिल के अमराज बढ़ने की वजह वर्जिश से दूरी और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना है। क्रिकेट नज़रियाकारों की सबसे बड़ी और मौत पर टीम के साथ मैं हूं सिकंदर, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, मैं हूं इमाद वसीम, मैं हूं मोहम्मद आमिर और मैं फिर आ रहा हूं सबसे बड़े चैनल सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میگا ایونٹ سے جڑی ہر خبر پر گہری نظر. میدان کے اندر کی خبر آپ کے سامنے, آف دی فیلڈ آن دی فیلڈ کیا چل رہا ہے سب بتائیں گے آپ کو. پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل پر کرکٹ ماہرین کا سب سے بڑا پینل, آل راؤنڈر اماد وسیم, مائنہ فاسٹ بولر محمد عامر, عبدالرزاق اور کرکٹ کے سکندر بخت کے ساتھ دیکھیے تبصرے اور تجزیے روزانہ صرف جیو نیوز پر. چین کے شہر ہینگزو میں جاری ایشین گیمز میں پاکستان نے پہلا میڈل حاصل کر لیا. خواتین کی شوٹنگ میں کشمالہ طلعت نے پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیتا. مینز ٹیم اسکواش میں پاکستان نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل بھارت سے ہوگا. مردوں کی 100 میٹر دوڑ میں پاکستان کے گوہر شہباز نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. چین میں چٹانیں اور بھاری پتھر پہاڑوں سے نیچے آ گرے. گاڑی والوں نے ریورس کر کے خود کو بچایا. منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئے. اور پاکستان میں فاسٹ بولر کیسے تیار کیے جاتے ہیں, سکندر بخت نے میچ کے دوران ایک تماشائی کی پٹائی کیوں کی. جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے میں کرکٹ کے سکندر بخت نے سب بتا دیا. یہ بھی بتا دیا کہ کون سی 4 ٹیمز ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچیں گی. پروگرام آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر پیش کیا جائے گا.